Hello students, welcome back to my next lecture. In this lecture, I shall talk about mass spectrometry, its basic principle, instrumentation and analysis, including some solved examples for your better understanding of the topic. Also, I will be using at places both Hindi as well as English medium for explanation of our topic. Let's begin. Mass spectrometry is a powerful analytical technique. Analytical technique means a technique which is used to analyze a sample. That sample can be known or unknown. This technique can be used to quantify your known material or to identify the unknown compounds within your sample, also to elucidate the structure and the chemical properties of your sample. This whole process is performed by a complicated machine. This machinery has three different components. The first component is the place where you are going to introduce your sample, which is known as the inlet. The second component basically converts your sample into gaseous ions, and then it characterizes your sample on the basis of mass to charge ratio and relative abundance. And then the third component is the computer system attached to this particular machine, which is going to record your result and is going to generate a result in the form of a spectrum. The basic principle of MS is to generate ions from either inorganic or organic compounds by any suitable method. तो सबसे पहले हमें अपने सैंपल का गैस फेज पॉजिटिव आयन फॉर्म जनरेट करना पड़ेगा. ये जनरली हम करते हैं अगर अपने मॉलिक्यूल से हम एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो हमको पॉजिटिव आयन मिल जाएगा. Then इन ions को separate करना according to their mass to charge ratio, which is denoted by m by z, and also appendance of each and every ion generated. कौन सा आयन किस क्वांटिटी में प्रेजेंट है, कौन कम क्वांटिटी में है, कौन सा ज्यादा क्वांटिटी में है, ये भी हमको एमएस से पता चल सकता है. और फाइनली ये जो एनालिसिस है इसका रिजल्ट जनरेट करना एक स्पेक्ट्रम के फॉर्म में या एक ग्राफ और प्लॉट के फॉर्म में of the ion abundance versus the mass to charge ratio. So let us now see all these three steps in detail. Have a look at this diagrammatic representation of all these three steps. First one is the production of the ions in gaseous state. हमारा सैंपल अगर लिक्विड स्टेट में भी है तब भी हम उसको पहले गैशियस स्टेट में चेंज करेंगे एंड अपने मॉलिक्यूल्स को हम पॉजिटिव आयंस में चेंज करेंगे. Then we need to provide a momentum to these ions. That is, we need to accelerate them to reach the next component. So here we are going to accelerate our ions using electromagnetic field. And as you all know that any charged particle when placed in an electric field or magnetic field or the combined effect of both the fields is going to move in a particular direction. So now we are going to accelerate our ions, send them to the next component, that is the mass analyzer, which is going to separate the ions. The basis of separation is mass to charge ratio. After the separation, the detection of these ions is going to take place by the next component, and finally we are going to get the result in the form of this type of graph. Now this may look a little difficult and you might be wondering what these lines are, but by the end of this video I am sure you will find these lines and the analysis of these lines, these bars, basically very simple and it's not difficult at all. So let's continue. So our instrument of MS comprises of 5 basic components. The first one is the sample inlet through which we shall enter our sample into the instrument. The next one is the ion source, which is going to transform our sample molecule into gas phase positive ions. We are also going to include an accelerator to the ion source, which is going to accelerate through the electromagnetic field. Third is the mass analyzer, the main part of our MS, which is going to separate the sample ions.
Then the detector is going to count the ions, and finally the data system attached to the whole instrument is going to record our signal and present it in the form of the graph that we just saw. The first step is ionization. Depending upon our sample, the ionization techniques available are various. If our sample is volatile, we can go for easier ionization techniques like simple electron impact ionization or the chemical ionization. However, if our sample is non-volatile, like the biomolecules, we have to go for any one of the following techniques, either the fast atom bombardment, thermospray, the MALDI, or the electrospray ionization, commonly known as ESI. When dealing with biomolecules, the most preferable ionization technique is the MALDI. MALDI stands for Matrix Assisted Laser Desorption Ionization. We shall look into this technique a little in detail in the later part of the video. This is a diagrammatic representation of the ESI, electrospray ionization, in which we convert our molecules into positive ions by extracting electrons and then make them pass through a very thin nozzle so that they vaporize or become into gas phase. Now let us understand how this ionization is exactly taking place. I've taken up the example of the simplest ionization technique, that is the electron impact ionization. ये आप लेफ्ट साइड में एक आयोनाइजेशन चैम्बर देख रहे हैं जिसमें नीचे फिलामेंट लगा हुआ है. इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम हमारे सैंपल पर इम्पैक्ट कराई जाती है कि हमने यहाँ पे सैंपल एक प्रोटीन मॉलिक्यूल लिया है. प्रोटीन्स कई सारे अमाइनो एसिड्स से मिलके बनते हैं. एमएस इन सारे अमाइनो एसिड्स का कॉम्पोजिशन बता सकता है, सीक्वेंस नहीं बताएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटीन है उसको हम फ्रेगमेंट्स में तोड़ दे रहे हैं, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर दे रहे हैं. तो कितने टोटल अमाइनो एसिड्स हैं, कौन कौन से अमाइनो एसिड्स हैं हमारे प्रोटीन सैंपल में, ये हमको पता चल सकता है. सीक्वेंस नहीं पता चलेगा क्योंकि पूरा सीक्वेंस ब्रेकअप हो चुका है फर्स्ट स्टेप में ही. अब जो हम इलेक्ट्रॉन बीम इस पे इम्पैक्ट कराते हैं उसकी में एनर्जी होनी चाहिए 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, क्योंकि डी ब्रोगलीज इक्वेशन एंड अदर फिजिक्स इक्वेशन से ये कैलकुलेट किया गया है कि जो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की इलेक्ट्रॉन बीम होगी उसकी वेवलेंथ 0.14 नैनोमीटर होती है, और ये वेवलेंथ सफिशिएंट है एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जिसकी लेंथ 0.14 नैनोमीटर है. So हमको इसी वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बीम लेनी है. That is why we have to impact the source sample with an electron beam of 70 electron volt. जब इतने वेवलेंथ की, that is 0.14 नैनोमीटर वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन बीम हमारे बॉन्ड पे पड़ती है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ओके और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे विच इज गोइंग टू यील्ड पॉजिटिव आयंस. सो जब एक पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसके दोनों फ्रेगमेंट्स रिलीज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव आयंस, एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव, the gaseous positive ionic form of our protein sample. So thus we can generate all the amino acid fragments of our protein. प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सबको हमने सेपरेट कर दिया और पॉजिटिव आयंस में चेंज कर दिया. अब इन पॉजिटिव आयंस को हम एक्सेलरेट करेंगे और एमएस में भेजेंगे, दैट इज मास एनालाइजर में भेजेंगे, ताकि मास एनालाइजर इनको सॉर्ट कर सके. इसी आयनाइजेशन टेक्निक का एक और एडवांस्ड वर्जन है माल्डी, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन. This ionization technique was first developed by Karas and Helmkamp in 1988. इस टेक्निक को हम एसोसिएट करते हैं टॉफ के साथ. दैट मीन्स जो हमारा एमएस है उसका जो आयोनाइजेशन वाला पार्ट है वो बना है माल्डी से. और जो हम मास एनालाइजर यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर. जिस तरह से आयोनाइजेशन टेक्निक्स कई सारी अवेलेबल हैं,
हमारे चॉइस के लिए। उसी तरह से एनालाइजर टेक्निक्स भी कई सारी अवेलेबल होती हैं हमारे सैंपल के ऊपर डिपेंड करते हुए। सो जनरली बायोमोलिक्यूल्स को जब हम स्टडी करते हैं तो हम माल्डी टॉफ प्रेफर करते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन माल्डी करेगा और एनालाइजर टॉफ एनालाइजर करेगा। ऐसा क्यों, ये भी आपको आगे इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सो माल्डी टॉफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जो आयन सोर्स है वो बनता है माल्डी में, और जो एनालाइजर है दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर। लेट्स सी इसका क्या मतलब है। माल्डी में हम एक स्लाइड लेते हैं, एक प्लेट लेते हैं जिसके ऊपर हमने एक मैट्रिक्स एसोसिएट करा रखा है। The blue circles and the green blocks and the red circles are the cells of the matrix, or basically the atoms of the matrix. इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने अपना सैंपल लोड कर दिया है, that is the cation. So these plus signs represent our cation. So हमारे पास एक प्लेट है, फिक्स्ड प्लेट है जिसके ऊपर एक मैट्रिक्स फिक्स है, और इस मैट्रिक्स के ऊपर हमने अपना सैंपल लोड किया है। ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे सैंपल के आयंस को सपोर्ट देगा, और उसके जो वेपर फॉर्म्स होंगे, जो गैशियस फॉर्म्स होंगे, उनको डिकम्पोज नहीं होने देगा। डिकम्पोज नहीं होने देगा, हम अपने एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने प्रोटीन लिया था और प्रोटीन को फ्रेगमेंट कर लिया था into its basic components, that is the amino acids. मगर अगर आयोनाइजेशन के टाइम पर अमाइनो एसिड भी टूट जाए, डिकम्पोज हो जाए और उसका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब अलग अलग हो जाए, तो क्या आप अमाइनो एसिड की स्टडी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो बायोमोलिक्यूल्स के केस में जैसे पेप्टाइड्स, लिपिड्स, सैकराइड्स और बाकी जो और मैक्रोमोलिक्यूल्स है, उस केस में ताकि हमारा बेसिक मोनोमर या बेसिक मॉलिक्यूल डिकम्पोज ना हो, इसीलिए हम एक मैट्रिक्स का सपोर्ट देते हैं। और जो आयनाइजेशन कराते हैं वो अल्ट्रावायलेट लेजर से कराते हैं, इसीलिए इसको नाम दिया गया है मैट्रिक्स असिस्टेड, क्योंकि मैट्रिक्स का यूज कर रहे हैं, लेजर से आयोनाइजेशन करा रहे हैं। इस आयोनाइजेशन की वजह से जो हमारा सैंपल है वो हमारे मैट्रिक्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर डिसॉर्ब हो जा रहा है, इसलिए इसको पूरा नाम मिल रहा है मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन आयोनाइजेशन। तो इसीलिए इसको हम एक सॉफ्ट आयोनाइजेशन टेक्निक कह रहे हैं, which involves a laser striking a matrix of small molecules to make the analyte molecule, जो हमारा molecule है, into the gas phase without decomposing them. So some of the biomolecules are very large, और जब हम उनको हीट करते हैं या उसके ऊपर अगर डायरेक्ट हम लेजर लाइट इम्पैक्ट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन बीम इम्पैक्ट कराएंगे, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब माल्डी के साथ हमने एसोसिएट किया है एनालाइजर टॉफ, इसका क्या मतलब हुआ? बीप डायग्राम देखिए, दिस इज द आयोनाइजेशन पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज द एनालाइजर पार्ट, जो कि एक टॉफ है। टॉफ का मतलब हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्शन। ये एक लंबी सी ट्यूब है, अगर आप पीछे जो मैंने डायग्राम दिखाया था उसमें आपने देखा था जो माल्डी का इंस्ट्रूमेंट है वो काफी लंबा है, जिसमें बीच में एक लंबी सी रॉड जा रही है। इस रॉड के अंदर हमारे जो आयंस हैं वो मूव करते हैं, और क्योंकि ये बहुत ज्यादा दूरी तय करते हैं तो टाइम के बेसिस पे इनमें सेग्रीगेशन या सॉर्टिंग होती है। क्योंकि जो छोटा मॉलिक्यूल होगा वो ज्यादा तेजी से दौड़ेगा तो वो ज्यादा आगे पहुंचेगा, जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो पीछे रहेगा, तो मास अपॉन चार्ज रेशियो के बेसिस पे सॉर्टिंग बहुत इजीली हो जाती है। टाइम ऑफ फ्लाइट डिटेक्शन गिव्स अस मोर एक्यूरेट सॉर्टिंग रिजल्ट, एंड देन लेटर ऑन जब हम इसमें एक अपने जो बीम है, जो हमारे आयंस की बीम ट्रैवल कर रही है हमारे एनालाइजर में, उसको बेंड करा देते हैं, डिफ्लेक्ट करा देते हैं यूजिंग द मैग्नेट्स, so we are able to get a more sorted result. So therefore MALDI is preferable over the other techniques while using the biomolecules. ये डायग्राम आपको ज्यादा अच्छे से दिखा रहा है कि कैसे डिफ्लेक्शन क्रिएट किया जाता है। यहाँ पर हमारा सैंपल है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन सोर्स है जिसकी बीम इसके ऊपर इम्पैक्ट होती है, या फिर आप अगर माल्डी यूज कर रहे हैं तो लेजर बीम आप इम्पैक्ट कर रहे हैं।
आयोनाइजेशन टेक्निक कोई भी यूज करते हैं, फाइनली हमारे पास पॉजिटिव आयंस जनरेट होते हैं। ये पॉजिटिव आयंस एक्सिलरेटर के थ्रू, यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 एक्सिलेटर्स लगे हुए हैं, इन एक्सिलरेटर्स के थ्रू ये आगे मूव करते हैं और एमएस में पहुंचते हैं। एमएस में इनको डिफ्लेक्ट किया जाता है। डिफ्लेक्शन के लिए हम यहाँ पे ह्यूज मैग्नेट्स यूज कर रहे हैं। इन मैग्नेट्स के प्रेजेंस में जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट इज, अगर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे स्ट्रेट पाथ में चल रहा है और आपने अचानक से यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिया, ठीक, जब आप यहाँ पे एक मैग्नेट लगाएंगे तो ये सीधे जाने की जगह ऐसे नीचे बेंड हो जाएगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा, अगर दूसरी कोई बीम आ रही है थोड़ी डिफरेंट मॉलिक्यूल की, तो ये भी बेंड होगी, मगर इसमें डिफ्लेक्शन डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपको वही सेम डिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्योंकि हम अपना इंस्ट्रूमेंट को हमने ऐसा बनाया कि हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए हमने अपनी ट्यूब को भी बेंड कर लिया है। ठीक, ये ट्यूब है और इस ट्यूब को यहाँ पे हमने बेंड किया हुआ है। सो ये जो डिफ्लेक्शन है ये आप देख रहे होगे, 3 रेज इसमें साफ साफ दिख रही हैं। एक रे X प्लस की है, दूसरी रे Y प्लस की है और थर्ड रे Z प्लस की है। ओके, अगर इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता, अगर आप ये मैग्नेट नहीं लगाते, तो ये बीम ऐसे डायरेक्ट जानी चाहिए थी, राइट? ओके, बट मैग्नेट लगाने की वजह से ये इस तरह से डिफ्लेक्ट हो गई है। Z प्लस में सबसे कम डिफ्लेक्शन है और X प्लस में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है। सी द डिफरेंस? क्यों? क्योंकि जो लाइटर पार्टिकल होता है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और जो हेवियर पार्टिकल होगा उसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। द लाइटर द मास, मोर इज द डिफ्लेक्शन। ऑल्सो ये चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मास के बेसिस पे डिफ्लेक्शन हो गया, देखो मास के बेसिस पे सॉर्टिंग हो गई, एक्स अलग हो गया, वाई अलग हो गया, जेड अलग हो गया। बाय चांस हमारे सैंपल में एक मॉलिक्यूल जेड का +1 चार्ज का है और दूसरा मॉलिक्यूल जेड का ही +2 चार्ज का है, तो भी वो यहाँ पे 2 अलग अलग रेज क्रिएट करेंगे। अगर आयन में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। तो चार्ज और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली रिलेटेड है, मगर मास और डिफ्लेक्शन इनवर्सली रिलेटेड है। Lighter the mass, more is the deflection, as is the case with X plus, and more the mass, more is the more of the charge, more is the deflection. मान लो अगर हमारे पास कोई एक और मॉलिक्यूल स्पीशीज होती है, आयन स्पीशीज होती है Z+2 की, तो वो हमको यहाँ पे बीच में मिलती है, राइट? These deflected ion beams are then detected by a detector. Now these detectors are of various kind and we can choose amongst them. The most common one and the one which I have displayed over here is a Faraday's cup. There are some amplifiers also which are going to amplify the signal and give you more better and clear peaks in your spectrum. The system which is attached to the machine, the MS, will then give you the result in the form of the spectrum. ये जो मास स्पेक्ट्रम जनरेट हो रहा है, अब इसके एनालिसिस देखते हैं कैसे की जाती है। ये मास स्पेक्ट्रम हमको वर्टिकल बार ग्राफ के फॉर्म में मिल रहा है, जिसमें हर एक वर्टिकल बार एक पर्टिकुलर आयन स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है, जिसका एक स्पेसिफिक M/Z रेशियो है। और हर एक वर्टिकल बार ग्राफ की जो लेंथ है, जो डिफरेंट है, वो बताती है कि उस पर्टिकुलर आयन का अबंडेंस कितना है, रिलेटिव अबंडेंस कितना है हमारे सैंपल में। सो हमने प्रोटीन लिया था, उस प्रोटीन में कितने तरह के अमाइनो एसिड्स हैं ये हमको पता चल जाएगा, क्योंकि उतने ही तरह के हमको पीक्स मिलेंगी या बार्स मिलेंगे। और जिस बार की लेंथ बहुत लंबी होगी, इसका मतलब रिलेटिवली वो अमाइनो एसिड हमारे प्रोटीन में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और जिसकी जो लेंथ है हमको वो कम मिलेगी, इसका मतलब उसका अबेंडेंस, रिलेटिव अबेंडेंस कम है। इस पॉइंट को हम आगे अभी एक एग्जाम्पल से भी और डिटेल में समझेंगे। जिस वर्टिकल बार लाइन की लेंथ हमको 100% मिलती है उसको हम बेस पीक कहते हैं, राइट? इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज यूजुअली आस्क्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट इज
estimating the deflection. Okay. So now you know that when you impact your sample with an electron beam of wavelength 0.14 nanometer, it will generate a positive ion. And when you accelerate these positive ions into the mass analyzers, they are going to show certain deflection. यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, एक का मास है m1 और एक का मास है m2. दोनों हमने +1 लिए हैं, तो z दोनों में सेम है +1. Okay, this makes our understanding and calculation easier for the moment. Okay. So that means जो m by z वैल्यू है वो m के बराबर होगी. So इस फर्स्ट क्वांटिटी की m by z वैल्यू m1 के बराबर है और सेकेंड क्वांटिटी की m by z वैल्यू m2 के बराबर है. Okay. m1 में आप देख रहे हैं radius of deflection is r1 and m2 has a radius of deflection of r2. जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा इसका मास है और जितना ज्यादा मास होगा उतना कम डिफ्लेक्शन मिलेगा हमको. डिफ्लेक्शन मतलब अगर इसको आप डिफ्लेक्ट नहीं करते तो ये बीम ऐसे सीधे निकल जानी चाहिए थी. ठीक, मगर क्योंकि आपने यहाँ पर मैग्नेट्स प्लेस कर दिए और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से ये डिफ्लेक्ट कर गई. सो दिस इज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फॉर m2. ऑब्वियसली दिस इज shorter than the angle of deflection of m1. So deflection किस में ज्यादा हो रहा है? Deflection m1 में ज्यादा हो रहा है. m1 में deflection ज्यादा है and by this simple equation you can remember this relation कि मास जितना ज्यादा होगा डिफ्लेक्शन उतना कम होगा. ये हम सिंपल फॉर्म में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने z को +1 लिया हुआ है. टू बी मोर स्पेसिफिक, more the m by z ratio, less will be the deflection. अब क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है? आपको 4 स्पीशीज दी जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि किसमें मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो रहा है. Let's solve them. First species is the oxygen molecule and the number 16 denotes its isotope. ये 16 एटॉमिक नंबर का आइसोटोप है. सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में दो ऑक्सीजन एटम होंगे और दोनों यहाँ पे 16 मास के हैं. सो इसका मतलब टोटल इस मॉलिक्यूल का जो मास हो जाएगा दैट विल बी 16 + 16. चार्ज है इसमें +1 तो z है 1. m by z रेशियो आपका निकल आएगा 16 + 16 32 upon 1 that is 32. सिंपल. नाउ द सेकेंड स्पीशीज का हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे, मगर यहाँ पर जो O2 है उसमें जो दो एटम्स हैं दोनों डिफरेंट एटॉमिक वेट के हैं. एक है 16 और दूसरा उसका आइसोटोपिक फॉर्म है विद द मास 18. सो यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देंगे. चार्ज हमारा +1 ही है. एज अ रिजल्ट जो m by z रेशियो आ रहा है दैट इज 34. Third species is again an O2 molecule of mass 16 + 16, but here the charge generated is +2. तो z की वैल्यू हो जाएगी 2. Therefore, we are going to get m by z ratio as 16. And the fourth molecule is O2, but with a mass of 18 each. So 18 + 18, 36. Charge +2, which is going to give us the m by z value of 18. अब हमने अपना जो रूल पढ़ा था कि m by z वैल्यू जितनी कम होगी डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा होगा. ओके, सो m by z वैल्यू आप चारों की निकालेंगे और आप देखेंगे जिसमें m by z सबसे कम है उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा है एंड जिसमें m by z वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उसमें डिफ्लेक्शन सबसे कम होगा. Isn't it simple? Now moving on to the next type of question. Now this is a spectrum based analysis जहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जो रिजल्ट है वो आपको दिया गया है जिसके बेसिस पे आपको एक स्पेक्ट्रम, सिंपल सा स्पेक्ट्रम तैयार करना है. Okay. Now you will think कि हम स्पेक्ट्रम कैसे तैयार कर सकते हैं. At the end of this question you will see it is very simple. हमने m एक मॉलिक्यूल लिया है, उसके हमने सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स लिए हैं
और आयोनाइजेशन कराया। जरूरी नहीं है 100% आयोनाइजेशन हो जाए, तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आउट ऑफ द 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ M कंपाउंड टेकन 9000 molecules are ionized to M plus। अपनी सिंप्लिसिटी के लिए अभी हमने यहाँ पे सारे जो फ्रेगमेंट्स लिए हैं वो सारे के सारे आयन स्पीशीज +1 चार्ज के लिए हैं, ठीक, अपने अपने अभी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, अब साथ ही साथ आपको ये बताया गया है कि आयोनाइजेशन के बाद ये जो M मॉलिक्यूल है ये 6 फ्रेगमेंट्स में हमको सेग्रीगेट होता हुआ दिखता है। F1, F2, F3, F4 and F5 and F6, all of them having the same +1 charge. This is given in your question. सबका मास आपको दिया गया है, okay? और सबका नंबर आपको दिया गया है। नंबर मतलब ये किस मात्रा में प्रेजेंट है। आयोनाइजेशन के बाद फ्रेगमेंट F1 is present in the number 1500, जबकि F2 सबसे कम है जिसके सिर्फ हमको 50 स्पीशीज मिल रही हैं। F3 के हमको 1000 स्पीशीज मिल रही हैं, F4 के 2000 स्पीशीज है, F5 की 3000 स्पीशीज हैं और F6 की 1000 स्पीशीज है। टोटल अप करेंगे तो आपको 9000 मॉलिक्यूल्स का पूरा ब्यौरा मिल जाएगा, ठीक। अब इसको हम आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, पहले हमें अबेंडेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज रिलेटिव अबेंडेंस निकालना पड़ेगा। ये नंबर जो आपको दिया गया है ये रिलेटिव अबेंडेंस नहीं है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है। इस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से हम रिलेटिव अबेंडेंस कैलकुलेट करेंगे। जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा फ्रेगमेंट है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, दैट्स राइट, द F5। तो जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको हम 100% मान लेते हैं। परसेंटेज निकालना आपको पता है, गिवन वैल्यू अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू इनटू 100, ठीक। सो इस पर्टिकुलर F5 का अगर हम 100% मान लेते हैं तो डिनोमिनेटर में मैक्सिमम वैल्यू हम 3000 लेंगे और इसकी अपनी इंडिविजुअल वैल्यू 3000 है। दिस इज गोइंग टू गिव अस 100%। Okay? अब इसी बेसिस पे हम बाकी सारे फ्रेगमेंट्स का अबेंडेंस कैलकुलेट करते हैं कि अगर F5 100% है तो इसकी कंपैरिजन में, इसकी तुलना में F1 कितना होगा। F1 का नंबर है 1500, मैक्सिमम नंबर जो हमने लिया है दैट इज 3000 विच इज गोइंग टू गिव यू 50%। F2 के अबेंडेंस आ जाएगी 17%, सिमिलरली F3 की अबेंडेंस 33%, F4 की अबेंडेंस 66% एंड F6 की अबेंडेंस 33%। नाउ डोंट टोटल देम अप, ये सबको टोटल करके ये नहीं कहोगे मैम ये तो 100 से ऊपर जा रहा है, 200 जा रहा है, नहीं, आप यहाँ पे टोटल नहीं करो क्योंकि आप रिलेटिव अबेंडेंस निकाल रहे हो। F1 का नंबर कितना है F5 की तुलना में, F2 का नंबर कितना है F5 की तुलना में। आपने अपने F5 को जो मैक्सिमम नंबर का स्पीशीज है उसको आपने अपना बेस रेफरेंस मॉलिक्यूल मान लिया है, तो इससे आपको रिलेटिव अबेंडेंस मिल जाती है। अब हम इस सारे डेटा से अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक्स एंड वाई। एक्स एक्सेस में हमेशा m बाय जेड वैल्यू प्लॉट करी जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारा ये जो z वैल्यू है वो 1 है ओवरऑल, इसीलिए हमारे m बाय जेड वैल्यू विल करस्पॉन्ड टू द मास m वैल्यू। और y एक्सिस पे ये जो हमने अबेंडेंस परसेंटेज निकाला है इसको प्लॉट करेंगे, ठीक। सो m/z वैल्यू में हम डायरेक्टली यहाँ पे मास फीड करेंगे और इस तरह से हम वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। सो F1 की आपको जो परसेंटेज मिल रही है दैट इज 50%, तो F50 पे आप एक 50% का बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट मास है 100 और इसका परसेंटेज है 17%। देन थर्ड इज अ मास ऑफ 150 और इसका परसेंटेज 33% है। F4 जिसका मास 200 है और इसका अबेंडेंस 66% है। F5 हमारा 100% है जिसका मास 225 है और F6 जिसका मास 250 है दैट इज एट 33%। Isn't it very simple? And see, the calculations are also very simple. It may look a little complicated, but see, the concept is very simple. Now, moving on to the next type of question. ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको ओवरऑल फिनिशिंग टच दे देगा अपने MS के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि यहाँ पे हम जो स्पीशीज है उनको डायरेक्ट इवेल्युएट कर रहे हैं।
Okay, that is identification of the sample. हमारे पास कोई अननोन सैंपल है जिसको हमने एमएस में रन कराया है और हमको स्पेक्ट्रम मिल गया है, तो अब उसको कैसे एनालाइज करेंगे कि ये क्या सैंपल हो सकता है। यहाँ पर अपने एग्जाम्पल में हमने दो सिंपल गैसियस कंपाउंड्स लिए हैं, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द अदर इज प्रोपेन। आई चोज दीज टू बिकॉज they both have the same mass of 44 EMU। अब आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट कंपाउंड्स है जिनका ओवरऑल मास भी सेम है, बट तब भी हमको एमएस में डिफरेंट प्लॉट्स मिल रहे हैं, और प्लॉट को देख करके हम पहचान सकते हैं कि ये किस कॉमन कंपाउंड का प्लॉट है। कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट प्लॉट CO2 का और सेकंड प्लॉट प्रोपेन का। CO2 मॉलिक्यूल जो है जब वो ब्रेक डाउन होगा आयंस के फॉर्म में, ये सिंपल केमिस्ट्री है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो। ठीक, तो जब ये सिंपल आयंस के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा तो एक पाथ है जिसमें CO प्लस मॉलिक्यूल बनता है एंड ऑक्सीजन फ्री रेडिकल बनता है। okay? When it is going to break, it is going to produce a oxygen free radical and the CO plus cation. This oxygen free radical is not charged, it has got a charge 0, it's neutral। एमएस में ये मॉलिक्यूल हमको किसी तरह की पीक नहीं देगा क्योंकि एक्सेलरेट सिर्फ आयंस होंगे, अनचार्ज स्पीशीज जितने भी होंगे वो हमारे एक्सेलरेटर में एक्सेलरेट नहीं होंगे, एमएस में एनालाइजर तक नहीं पहुंचेंगे और हमको पीक नहीं देंगे। तो ये मॉलिक्यूल किसी तरह की कोई पीक नहीं देगा, जबकि ये आयन स्पीशीज हमको एक पीक जनरेट कराएगा। दूसरे तरीके से अगर आयोनाइजेशन होता है, क्योंकि आप आयोनाइजेशन करा रहे हो, आप आयोनाइजेशन के तरीके को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं हमको पीक्स उन सारी पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे मिल सकती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो गई जिसमें हमको CO प्लस की पीक मिलेगी, और CO प्लस अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इसका M/Z 28 आएगा, मास ओवरऑल 28/1। दूसरा तरीका है जिसमें CO2 टूट सकता है, दैट इज CO मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड द O प्लस आयन बनेगा। अगेन CO molecule is not going to give you the result in MS, but this ion is surely going to give you a peak, right? इसका अगर आप मास कैलकुलेट करेंगे दैट इज गोइंग टू बी 16। सो हमारे इस स्पेक्ट्रम में हमको एक पॉइंट मिल रहा है, एक बार ग्राफ मिल रहा है 16 पे, दूसरा बार हमको मिल रहा है 28 पे, और तीसरा बार हमको मिल रहा है 48 पे। ये वो स्पीशीज होंगी जो नहीं टूटी हैं, जो आयोनाइज नहीं हुई हैं। तो इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये हमारा जो अननोन मॉलिक्यूल है वो CO2 रहा होगा। और एज आई सेड, जिसका हमको 100% एविडेंस मिलता है, ये हमारी बेस पीक होती है और ये जनरली सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे ज्यादातर CO2 इस एक्सपेरिमेंट में एमएस के CO2 के एमएस में CO2 ज्यादातर ब्रेक नहीं हुआ है, जो थोड़ा बहुत ब्रेक हुआ है उससे हमको दो छोटी छोटी पीक्स मिली हैं। सिंपल। Coming upon to a little tougher example of propane। प्रोपेन, इसका भी M/Z 44 आएगा। ओके, और जब आप इसको चार अलग अलग तरीके से ब्रेक करोगे, 1, 2, 3 एंड 4, तो चार अलग अलग तरीकों से ये ब्रेक होगा और चारों में ये चार अलग अलग तरीके के आयंस प्रोड्यूस करेगा। हर एक आयन का अपना अलग M/Z वैल्यू होगी। जो फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं या जो मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं वो हमको रिजल्ट नहीं देंगे। तो इन वैल्यूज को आप अपने ग्राफ के साथ टैली कर सकते हो और आप पता लगा सकते हो कि ये हमारा जो मॉलिक्यूल है ये क्या हो सकता है। नाउ व्हाइल गेसिंग द कंपाउंड, द अननोन कंपाउंड, यस इट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। यू हैव टू ट्राई टू फिक्स इन योर कंपाउंड इनटू द ग्राफ, जो भी आपको लगता है कि ये क्लोजेस्ट है, और उसमें से आप अपना बेस्ट ऑप्शन चूज करते हैं। वन मोर थिंग, कभी कभी हमको बहुत छोटी छोटी पीक्स भी बिल्कुल एडजेसेंट पीक्स मिल जाती हैं। एक बड़ी पीक के बार के बगल में हमको एक बहुत छोटे से पीक मिलेगी। दैट इज इररिलेवेंट, क्योंकि जनरली वो उसी पर्टिकुलर स्पीशीज का कोई आइसोटोपिक फॉर्म भी हो सकता है, तो उनको हम अपनी स्टडीज में रूल आउट कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ two more very important points to remember during MS.
पहली चीज, MS का फुल फॉर्म है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसको मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं बोला जाता है, क्योंकि स्कोपिक एनालिसिस वो होती है जिसमें सैंपल इंसिडेंट लाइट को एब्जॉर्ब करके और ट्रांसमिटेड लाइट को रिलीज करेगा, ठीक, जैसे कि एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में होता है, बियर लैम्बर्ट लॉ पे जो बेस्ड है। यहाँ पे हमारा सैंपल लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, ठीक, वो इलेक्ट्रॉन बीम या लेजर बीम के इन्फ्लुएंस में फ्रेगमेंटाइज जरूर हो रहा है, आयोनाइज जरूर हो रहा है, मगर किसी भी तरह की लाइट को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, इसलिए इसको मास स्पेक्ट्रोमेट्री बोलेंगे। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वुड बी अ रॉन्ग टर्म। सेकेंडली, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम वैक्यूम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक। आप पीछे डायग्राम में अगर आपको ध्यान हो तो जो इनलेट सोर्स है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, जब हम अपना सैंपल अंदर रखते हैं, फाइन, बट जब ये सैंपल आयोनाइज होगा और जब इसमें इसका एनालिसिस होगा तब ये पूरा प्रोसेस टोटल वैक्यूम में होना चाहिए। क्यों? टू रीजंस। फर्स्ट, टू अवॉइड द जनरेशन ऑफ अनवांटेड air species of ions during ionization, जिससे कि हमारा सैंपल कंटेमिनेट ना हो और हमारा रिजल्ट कंटेमिनेट ना हो, क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी आयोनाइज हो सकते हैं अगर हम एयर लेंगे, तो उनको इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए, उनको हटाने के लिए हम वैक्यूम का यूज करेंगे। सेकेंडली, अगर हम वैक्यूम एनालाइजर में नहीं यूज करेंगे तो जो हमारी आयन बीम है, okay, which is moving towards the detector, which is being deflected, it may collide with those undesirable non-sample ion species, and this is going to deflect our result. Okay? So because ताकि ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा हो, ताकि हमारे रिजल्ट में किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन ना हो, किसी तरह की कोई अनवांटेड आयन स्पीशीज जनरेट ना हो, कोलिजन अनवांटेड कोलिजन ना हो और हमारा रिजल्ट कंटेमिनेट ना हो, इस वजह से ये पूरा MS का जो प्रोसेस है ये वैक्यूम में किया जाता है। So friends, by this video I have made all your points very clear. I hope you have understood these points. Now this is just a quick summary of the applications of mass spectrometry in all the various fields. So students, this is all for this lecture. I have tried to incorporate all the important points on MS and I hope you have understood them. If you like my lecture, do press the like button, subscribe my channel for more such informative videos, and for any queries or questions, write in the comment section. Thank you.